Hello, everyone. Welcome back to Idols podcast, Behind the Stars. So, after I guess 2-3 months, we are doing this, Behind the Stars episode, and this time we have a great artist with us. सब जानते हैं उन्हें and इन्होंने इंडियन बैटल सीन में अपना बहुत ही strong presence, build किया है and he's been traveling across India for many things. I know he has won many battles. He has actually उनको एक one of the pioneers बोलते हैं of popping here in India and उन्होंने बहुत सारे battles judge किए हैं and is one of the legendary artists of our country. So let us welcome Mihir Karelia. Mihir, Can I stop you? yes. Can I tell you something? पहले तो thank you so much Sijin bhai for such an honor okay, and speaking such great words about me which I feel I'm not worthy up talak. But yes, like I've did some things which I feel okay कुछ तो मैंने किया है वैसा. Yeah, there is a reason, I'll definitely feel you're worthy of that credibility because मैंने आपका journey देखा है, and the way you have represented this culture and also, like कैसे आपने एक इस art form, obviously लोग आपको पहले से अलग अलग फॉर्म करते हुए दिखते हैं, बट अभी आप एक डिफरेंटली आर्ट प्रेजेंट कर खुद का एक स्टाइल बोल सकते हैं, ठीक है. So that shows कि as an artist आप कितने matured हुए हो, है कि नहीं? Yes, And- maybe because of that, I don't feel that I am good enough. But apart from that, like you have done many you have participated in many battles, you have won many titles, ठीक है. And apart from that, अभी आप travel कर रहे हो for judging those events. So that shows like क्या level पे हो आप अभी आप, So definitely मिले हो तो worthy हो आप. अभी आप consider कर रहे कि नहीं कर रहे, but for me, But coming from you, it feels like because even you are an artist, I've seen your journey little bit, not that much, winning medal outside India, representing and all. So it feels like unreal when it comes from an artist, So Though we share the same passion, मैंने मेरा जर्नी में कुछ चीज़ें करने की कोशिश की just like you, and I've been I guess blessed with those opportunities, and I feel really great that like मैं इस passion को pursue कर पा रहा हूँ, and same here. like I really feel blessed कि मैं इस passion को pursue कर पा रहा हूँ and I am able to do something as a purpose, एक purpose serve करने की कोशिश कर रहा हूँ. There you go, the idols. Yes, and that has been my passion as well as my duty as well. So उस feeling same है, and yes, so बहुत सारी चीज़ें discuss करेंगे, I'm really excited to know your journey as well, and बहुत सारी we'll discuss about your winning moments, about your perspective towards art जो आप करते हो, so like थोड़ा सा एक glimpse हमारे listeners को देना चाहूँगा about your journey. I guess you have been doing this for the past 15 to 16 years now. Yes. And इतने टाइम तक करना like बहुत बड़ी बात है. And so ये journey जैसे मैंने आपको कहा like अभी जैसे आपने मैंने कहा कि 15-16 years से आप कर रहे हो, okay. So like how did you start your journey, like what attracted you, अरे let's try it out, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा. तो पहले तो मैं डांस में like I never thought that I would be a dancer, like it was an accident. One of my best friends, he's a great actor right now, वो अभी रेलवे मैन में भी आया है, his name is रोशन. तो हम लोग कॉल रेलवे मैन सीरीज आया, और थोड़े थोड़े फिलर्स में भी आया है और थोड़े थोड़े म्यूजिक वीडियोस में भी आया है वो. सो तो हमारे जैसे सब लोग ने जैसा स्टार्ट किया कॉलोनी में नाच के तो मेरा जर्नी भी कॉलोनी में नाच के स्टार्ट हुआ था. बट इट वॉज एन एक्सीडेंट. आई वॉज अ वेरी शाय गाय, बहुत शाय था. और मेरी सिस्टर, शी वॉज अमेजिंग डांसर, लाइक रियली आई यूज्ड टू अडोर कि भाई ऐसे कैसे कोई मतलब खतरनाक. शी यूज्ड टू विन ऑल द कॉलोनी कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल. तो माई सिस्टर वॉज अ डांसर एंड आई वॉज वेरी शाई बिकॉज ऐसा रहता है ना, कोई एक डांसर रहता है कोई दूसरा ऐसा रहता है बहुत.
सहमा हुआ एकदम। तो बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो कैसा था, हम लोग के उधर कंपटीशन हो रहा था, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं अकेला क्यों जाऊँ, तू भी आ जा। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई। तो वैसे हम लोग ने, मैंने स्टार्टिंग में फोक डांस किया अंडर माय वेरी फर्स्ट टीचर संजोक सर। he used to choreograph folk dances, Marathi Lavani, like not Lavani, but Marathi folk dances. I don't know much about folk dances, but फिर भी हम लोगों ने, I tried, and then um, मैं सेंटर, like I was the center, and I was really nervous, you know, कि मैं कुछ ये ना कर दूँ, fuck up ना कर दूँ, और मैंने वही किया। फर्स्ट टाइम, लाइक आई वाज एन अनएक्सपीरियंस, मैं डांसर भी नहीं था, बट आई ट्राइड इट एंड समहाउ आई वाज अ सेंटर ऑफ दैट फोक डांस। एंड आई रिमेंबर कि मेरे को ऐसा बैठना था, आगे जाके ऐसा बैठना था और ऑडियंस को फेस करना था। तो मैं गया और मैंने उल्टा फेस करके बैठ गया, उल्टा। और मेरे जो पीछे लोग थे, अरे मिक तब तक था ही नहीं, मतलब डब तो एग्जिस्ट नहीं हाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो भाई मिहिर तो सीधा हो जा, सीधा हो जा। सो ऐसा सिनेरियो था स्टार्टिंग में। वी वर जस्ट डूइंग लाइक कॉलोनी से मैं बड़ा, और फिर बाद में लोकल कॉम्पिटिशन्स, जैसा मुझे लगता है कि हम लोग ने सबने किया है, कहीं ना कहीं सब लोग ने किया ही है कॉम्पिटिशन। कॉलोनी से हम लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे आई स्टार्टेड विद एक्सप्लोरिंग मोर स्टाइल्स। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, वी फॉर्म अ क्रू, उसका नाम था बॉयज़ ऑफ स्पिरिट। जो पहले थे, मेरे को, मैं आई एम वेरी बैड एट नेम्स, पर पता नहीं है कैसे मुझे याद है, क्योंकि एकदम शायद से फर्स्ट फीलिंग होता है ना, वो बहुत यादगार रहता है। तो वैसा सब मुझे याद है पहले का। तो बॉयज़ ऑफ स्पिरिट करके मेरा क्रू था, एंड लाइक धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है। और मेरे क्रू में थोड़े लोग थे, एंड दे यूज्ड टू लाइक लॉरेंस, नीलव एंड ऑल दिस पीपल यूज्ड टू लाइक, वो लोग मुझे वीडियोस दिखाते थे, लाइक सीडीज में, कैसेट्स में। तो कैसेट्स में मोस्टली हम लोग गाने सुनते थे। एंड फ्लॉपी डिस्क, मुझे याद है फ्लॉपी डिस्क, और वो जो पुराना फ्लॉप कभी के टाइम पीरियड की बात हाँ, कर, बहुत 2008 की बात चल रही है। मैं एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया, लाइक डांसिंग ही स्टार्ट किया विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट कंपटीशन का, लाइक सॉरी रियलिटी शोज, बैटल्स, और ये कुछ था ही नहीं मेरे दिमाग में। आई जस्ट स्टार्टेड विद जो मुझे आ रहा है मैं सीखते गया, एंड देन लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि मुझे सबसे ज़्यादा हिप हॉप और ये सारी स्टाइल्स पसंद आती है। पर मेरे पास, मुझे ऑब्वियसली हम लोग के पास, सारे लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज थी, एंड धीरे धीरे हम लोग, लाइक वी वर द फर्स्ट वंस टू टीच ईच अदर कि ये इसको ये बोलते हैं, ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो धीरे धीरे वैसे कनेक्शंस बने, वैसे फ्रेंड्स बने, वैसे सर्कल चेंज हुआ। धीरे धीरे जो हॉबी था वो बाद में पैशन में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिखा। विद इन अ ईयर आई गेस ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज समथिंग रियली अमेजिंग, आई शुड डू मोर, वैसा। सो लाइक जैसे आपने कहा कि लाइक वो हॉबी को आपने पैशन में कन्वर्ट होते हुए देखा, ओके। सो लाइक व्हेन डिड यू फाइंड लाइक वो पैशन, मतलब कैसे आ रहा था? लाइक ऑब्वियसली मुझे पता है कंसिस्टेंटली जब भी हम लोग चीज़ करते तब जाके वी स्टार्ट falling in love with that, falling for it for sure. So लेकिन आपके लिए मूवमेंट जैसे आपको बोला हॉबी टू पैशन, बिकॉज वो बहुत रेयरली किसी को दिखता है। अगर किसी को अगर पैशन में कन्वर्ट भी होता है, देन आई गेस वो लोग उस चीज़ को शायद रियलाइज नहीं करते या फिर एक्सेप्ट नहीं करते। सो आपके हिसाब से लाइक वो मूवमेंट लाइक ऐसा था कि जब मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, लाइक खाना पीना सब कुछ भूल जा रहा हूँ, लाइक इट डज नॉट मैटर, so many things does not matter, only one thing matters was dance and how can I grow with it. And I never thought कि मुझे इतना प्रैक्टिस करना है, उतना प्रैक्टिस करना है, इतना ग्रो करना है, उतना ग्रो करना है. It became like
कांस्टेंट थिंग, लाइक रोज मुझे करना ही है, और जब तक मैं कम से कम 2-3 टी शर्ट चेंज ना कर लूँ तब तक मैं घर पे नहीं जाने वाला। ऐसा जब मेरे को महसूस हुआ कि ऐसा इतना लगाव, इतना व्हाट यू कॉल दैट क्यूरियोसिटी, इतना ज़्यादा शिद्दत वाला चीज़ किसी में नहीं था। मतलब कोई भी चीज़ कर रहा था तो मैं किसी में भी नहीं था। तो व्हेन आई फेल्ट इट कि ये दिस इज समथिंग स्पेशल which is happening with me, कि I'm always so much into it, then I realize कि अच्छा ये तो भाई कुछ हॉबी से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कुछ समझ रहा है, मतलब टू मच। कंटिन्यूसली आप उसके बारे में सोच रहे हो, वही हाँ, चीज़ करना चाहते हो। यस, इट मेड मी फील स्पेशल, मतलब whenever I did it, तो वैसा था दैट्स ग्रेट। सो पैशन से प्रोफेशन में कभी गया? Oh, there's still I want to keep it passion first always, and I don't know, this is how I am and profession later. If I can make it big, for example, if I want to profession in the sense, what are you asking me? सो लाइक व्हेन आई से अबाउट प्रोफेशन, वो आपका एक जरिया बन जाता है, यू नो, हाँ, लाइक for making a फॉर living योर out of लिविंग। it. या मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट, या स्टिल, हाँ, ऐसा मुझे बाद में रियलाइज हुआ व्हेन लाइक स्टार्टेड विनिंग एंड आई स्टार्टेड जजिंग, देन आई थॉट कि आई कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, आई कैन डू समथिंग, बिकॉज ऑलरेडी लाइक पीपल वांट माय डांस और आर्ट और वांट मी, so there is something I'm adding value wherever I go, or this is much more than just now passion. I can make a living out of it. I can even earn out of it. I can do something. yeah, that is what you are हाँ, doing right now, right? Like हाँ, apart from, you know, sharing your passion, like you are, you know, traveling across India for judging events, you know, for educating people. हाँ, So this is how you know, have you know, बोलते हैं ना, एक तरह से आपने like you have carved out your living through your passion. Okay, because the reason मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because बहुत rarely लोग होते हैं जो अपने passion को profession में convert करते हैं. Okay. I think it was in one flow. I never thought कि I want to do it professionally. Later on, I just realized कि I can do it वैसा And then one more reason for asking this is like I know that you are also a pharmacist. हाँ, 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 Okay, and like you you know, mentioned about this like when we had met like 4 years ago in Idols, वो सब टाइम पे, एंड मुझे पता था कि आप दोनों चीज मैनेज कर रहे हो, ठीक है? That was a COVID time. Yeah, COVID time, exactly. And I was doing a job that time. सो वो चीज कैसे आप दोनों चीज को मैनेज कर रहे थे, एंड कभी आपने लगा कि मुझे वो चीज अभी फिलहाल नो लाइक साइड में रखना चाहिए एंड कम्प्लीटली मेरे ये जो पैशन उस पर फोकस करना चाहिए? मतलब मैंने कभी ऐसा ये सोचा कि मेरे को, हाँ, मतलब जैसे आप दोनों चीज मैनेज कर रहे थे, बीइंग अ फार्मासिस्ट हाँ, हाँ, एंड लाइक साथ ही साथ आप ये भी चीज कर रहे थे. तो ये बहुत फनी है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ like I did job, but I had good money. My family, really, everybody was really good with it when I did job. But as like 1-1.5 साल जब होने लगा तो I really felt like I am struggling with only living happily. तो later on I came to know कि मैं जॉब तो नहीं कर सकता, अगर मैं फार्मासिस्ट भी हूँ तो आई कैन डू समथिंग ऑफ माई ओन इन दैट फील्ड ऑल्सो। मुझे खुद का कुछ करना पड़ेगा, मे बी आई शुड गो इन सम रिसर्च और समथिंग लाइक दैट विच इज वॉट आई फील विल बी हैप्पी इवन इफ आई डू इन दैट डू समथिंग इन दैट फील्ड। तो 1-1.5 साल मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉन्ट टू परस्यू पूरा इन डांसिंग because I'm really good at it, and like जो मैं कर रहा था जॉब, I don't think so people much cared कि what I was doing.
तो मतलब जब मैं नाच रहा हूँ like everybody like it created a lot of difference for a lot of people. तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग I want to do. If I want to do something, that it should add some value, it should inspire people, or it should make people happy, or anything. And So more importantly, I feel it should make you happy, right? हाँ, yeah, सबसे yeah, इम्पोर्टेंट चीज़ वो चीज़ है. yeah. एंड ये चीज़ मतलब मैं मेरे पर्सनल जर्नी से भी शेयर कर, लाइक मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूँ 3 years. Oh, So like I also felt at that so time you कि did a job like yeah, so I was in an IT company, like तो मैं भी दोनों चीज़ कर रहा था. So 3 years I was this was when like from 2014 till 2017. oh So वो मेरे जर्नी में भी like मेरा HHI का कंपटीशन सब उस जर्नी में हुआ था. So एक टाइम आया जहाँ पे मुझे क्वेश्चन मतलब एक स्टेप लेना पड़ा कि like you know like what I really want to do in life, whether I want to you know get stuck in that job for the next 30 years, a timeline, yeah. yeah, or try taking risk, you know, by getting into your passion. So I for sure you also and me also don't feel offended with people who are doing it because they might be they are happy, they are happy with doing a particular job. For me, I'm not like I'm not a person who wants to do something in a set environment, like in a set thing every day, same thing. This is personally me because I tried it and I really felt shit for me, for myself. So as you said, yeah, you need to take a risk. So that is when like that is how you also took that risk, you know, Yeah, leaving pharmacy aside and completely switching to your passion. yeah. Still, I feel I can do a lot of things through dancing. Like when I see you and then a lot of people, I feel okay. I get inspired. Okay, if they can do something so big, even I want to do really something big. But you are also as a- doing it, like मतलब अगर आप देखोगे, you know, हाँ, like मैं आपके पोस्ट देख के इंस्पायर होता कि भाई मीर इधर जा रहे हैं, मीर इधर जा रहे हैं, है ना? मीर खुद का चीज़ कर रहे हैं एंड यू नो अभी बैटल्स जज कर रहे हैं, अभी इधर नेपाल जा रहे हैं या फिर एक इस साइड जा रहे हैं, यू नो, टू कंडक्ट वर्कशॉप्स और टू जज. सो समवेयर यू नो एज एन Viewer, ऑडियंस, हाँ, एज अ व्यूअर, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लाइक यू नो टू I'm doing something. हाँ जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो पर्सन भी ट्रैवल कर रहे हैं, यू नो, वो भी वो चीज़ कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट जर्नी है. हाँ, obviously. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ऐसा कुछ बड़ा नहीं, मतलब आप भी बड़े स्केल पे ही कर रहे हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना, हाँ, मतलब बहुत रेयरली कोई आर्टिस्ट कर पाता. Not everybody does that. एंड खुद के आर्ट फॉर्म यू नो को रिप्रेजेंट करना, खुद के आर्ट को रिप्रेजेंट करना एंड लोग अट्रैक्ट होके आपके आर्ट को समझने की कोशिश करना. दैट्स This is yeah, I want to go international for sure. I feel I am international, but I want to go outside and like teach and showcase and do more different work through my dance. दैट्स ग्रेट. सो यू नो जैसे भी मैंने आपके आर्ट के बारे में बहुत डिस्कस किया, सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आपके हिसाब से लाइक व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव यू नो टुवर्ड्स आर्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू परस्यू यू नो with your art as an artist. Okay? Because we have seen some crazy creative stuff, you know, on your Instagram. Okay? Many people might understand it, many people might not understand it, and that's completely fine, because art is not a medium to be judged. You know, Yes, it's a way of living, I guess. for sure. Yes. So वो चीज़ लाइक यू नो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ. हम देखते हैं लेकिन मुझे आपके यू नो शब्द से सुनना है कि लाइक यू नो आर्ट आपके लिए क्या है, आप एग्जैक्टली क्या परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो इस आर्ट के थ्रू. So I think this will be this not anywhere right now. जो भी मैं बोलने वाला हूँ, I thought of like as I shared with you कि मेरे को tutorials बनाना है and I want to educate people in terms of art and so many different things which we don't see like nowadays
बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइम, मतलब कुछ अलग चल रहा है हर जगह पे इन टर्म्स ऑफ डांस. तो मेरे लिए आर्ट, इसलिए मैं सोच रहा कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा, बट नाउ लेट्स गो विद इट. और लाइक मेरे लिए लाइक मैंने कुछ रियलाइजेशंस किया है जो आर्ट जो मेरे लिए है वो सब बहुत सारे लोगों के लिए सिमिलर है. If we talk about musicians, actors, painters, I keep on sessioning with them, also talking with them about art, so that I come to know कि जो मैं सोच रहा हूँ आर्ट के बारे में वो लोग भी सोचते हैं क्या वैसे. एंड आई फाइंड आउट कि वो लोग भी वही सोच रहे मतलब दे हैव द सेम रियलाइजेशंस, बट देयर मीडियम इज डिफरेंट. माई मीडियम इज मूवमेंट, their medium is painting, to paint something. The other person's medium is to sing. So सबका medium अलग है, but the experience was similar, not totally same, because art is again it's not like I define it and everybody has to follow it because it's how we perceive it. And I have few definitions which I want to share in future maybe, but for me art is right, like it's different. Like मेरे पास बहुत सारे different definitions है for me which I realized. One of the definition which I want to share is like it is the expression of your own individual experience. It is a means. Art is just a means in which we express our own experiences. And that experience can be anything. It can be a feeling, it can be some a thought, it can be something, some understanding, it can be just a mere observation, it can be coming out of some awareness, it can come out of some realizations. Thoughts, So imagination. anything it can come. It is just a means to for us to express, and we choose the medium. If I choose a medium which I call movement, I want to move and express whatever I feel, whatever I think. And for similarly, if a painter he wants to express something he has seen or understood, or he wants to portray or tell a story or anything, they paint and do the same thing. So for me it is a medium right now. Exactly, जैसा मुझे भी लगता है like आपका definition 100% like actually उस चीज़ को define करता है because art is a is a way through which we share our perspective, our imagination, like you mentioned, okay, and we live it up to the audiences to get their own interpretation towards it. Yes, ठीक है. for sure. And also I want to share like as I went through different practices, I came to know that some art is for everybody, and some art is for some people who understand or live with deep realizations. For example, subjective and objective. I don't think so that art is not for everybody. I feel art is for everybody, but there is a time for everybody to understand certain things in certain timeline. So maybe what I am portraying right now through my movement, they may not understand. Maybe this is not the right set of audience or the environment or the timeline which I want to portray certain things. And so some, whereas I felt कि like कोई चीज़ मेरी सबको समझ जाती है. And same goes to painters. If we ask a layman to understand some painting of some people, for example Vincent van Gogh and lot of different paintings, they will at first sight they will not understand. Picasso का कोई painting उठा लो, they will not understand. But for people who are artists or who wants to really understand it, they'll give time, and once they get a gist of it कि ये ऐसा कुछ है, they'll be interested, and it will move them in so many different ways.
तो So exactly, that is the beauty of this art, right? Like be it dancing, be it painting, like you mentioned, वो एक चीज़ आपको देता है कि लाइक आप आपका इंटरप्रिटेशन डाल सकते हो. यस ओके, लाइक आप ये नहीं बोल सकते अरे क्या कर, नहीं, यू हैव टू गेट इन टू दैट थिंग टू अंडरस्टैंड, टू आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा लाइक व्हाट दैट आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू इंस्पायर और एक्सप्रेस. ठीक है, सॉरी, एक्सप्रेस मतलब इंस्पायर गलत हो गया, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर. या इवन भी इंस्पिरेशन, या इट्स इन अ वे इट्स अ इंस्पिरेशन. So वो एक चीज़ है, and that is the beauty, in doing this art forms, be it any art form. हाँ. So जो आपने कहा, जहाँ जिस जैसे आपने explain किया, right, it actually does, बहुत ही अच्छे से आपने describe किया about this thing. So अभी जैसे हमने इतने सारे like हमने authenticity के बारे में ज़्यादा discuss किया about art. So let us discuss something about the commercialization as well. आपका commercialized आपका जर्नी एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट भी मैंने देखा है, लाइक आप बैटल्स में पार्टिसिपेट करोगे, या वन कॉम्पिटिशंस, या वन बैटल्स, एंड आपने जजिंग भी किया है. ठीक है, सो अभी मतलब बहुत लंबे टाइम से आप वो चीज़ करते आ रहे हैं. ओके, सो वो जर्नी में से लाइक आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? कौन सा मोमेंट है जो आप हमेशा चेरिश करोगे, जो आपने शायद पहला बैटल रहेगा हो सकता है, या फिर मे बी एनी बैटल इवेंट जो आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूंगा. ओह बहुत ये डिफरेंट क्वेश्चन है. मतलब मेरे लिए ऐसा वन मोमेंट बोलना बहुत टफ है. मैं सोचता हूँ फिर भी ऐसा. बट एनी मोमेंट लाइक, अगर आपको लगता है अगर ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स है, सो मे बी शायद एक मोमेंट में कोई इतना कुछ फीलिंग शायद डिफरेंट हुआ रहेगा ना, लाइक मे बी लाइक वो फर्स्ट इवेंट, बैटल इवेंट भी हो सकता है, या फिर एनी डिजायर्ड इवेंट जहाँ पे आपको जीतना था. हाँ, अगर जब मैं मेरी स्टार्टिंग शुरुआत के जर्नी में लाइक देयर आर दो सिचुएशन मैटर्स अ लॉट इन माय बिगिनिंग के स्टेज में, जब मैंने स्टार्ट किया था. फॉर एग्जांपल जब Yes. Salah he came for the first time to Bangalore. तो लाइक हाँ, एक मैंने एक रियलाइजेशन किया कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता तभी मैं जीत जाता हूँ. कि आई नेवर थॉट कि आई वांट टू विन. और वैसे बैटल्स मुझे लग रहा है कि इज़ मेमोरेबल टू मी. मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि लाइक कोई बहुत सारे बैटल्स में सोचता हूँ कि मेरे को जीतना ही है, कंपल्शन. और कभी कभी कोई बैटल्स में विदाउट थॉटलेस रह के मैं खाली एन्जॉय करता हूँ. तो वैसे सलाह का बैटल है. एंड देन रिसेंटली आई वॉन रेड बुल. इवन दैट वॉज नॉट प्लान्ड कि दैट वॉज नॉट इवन प्लान टू गेट ऑन. आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे को उतरना भी चाहिए because of my approach and movement, which is different from a particular format right now. But because of my past and so I thought of like giving a try, and I won that event. वही, मैं ऐसा कुछ डिज़ायरेबल नहीं था कि मुझे जीतना है, कि मैं जीतने के लिए गया. तो ऐसे मोमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगे, रेदर देन मैंने सोच के गया, मैंने किल किया और मैं जीत गया. मुझे ऐसे इवेंट्स याद भी नहीं है. कि ऐसे हुए भी है कि मैंने प्रिपेयर किया है एक वीक, दो वीक, और मैं जीता वैसा. पर मुझे उससे ज़्यादा स्पेशल, वो स्पेशल है ही, उससे ज़्यादा स्पेशल जब मैंने जीतने के लिए नहीं गया एंड आई जस्ट एन्जॉयड इट. वो सारे इवेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है मेरे लिए. That's really nice. Salah's event and recent win, and then even Hiro from Japan when he came. तो there's this amazing concept, beat my beat. सामने वाला एक बंदा उसका बीट देगा, मैं अपना बीट दूंगा, और थर्ड राउंड में अननोन बीट रहेगा. तो even that was something good for me when I got down. तो वो एक इवेंट है. ऐसे और सारे इवेंट्स हो गए, आई एम रियली फॉरगेटिंग. लाइक वेयर आई फील के हाँ बहुत मज़ा आया. और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि, और इससे भी ज़्यादा लाइक व्हेन वी बैटल्ड ईच अदर, लाइक आई यूज्ड टू
generally battle people and there was no events and all. तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा memorable है. When I battled at there's a place called Bhayandar Khadi, obviously everybody knows it. तो हम लोग उधर we used to like battle each other, like 7 to smoke, 8 to smoke, 9 to smoke. जितने भी लोग आए आओ एक दूसरे से बैटल करो और देखते हैं कौन जीतेगा. तो मुझे लग रहा है ये सारे मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है. भले मैंने जीता रहेगा बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स पर मुझे इतना ये नहीं है अभी. लेकिन मतलब दैट शोज कि कितने इवेंट्स आपने जीते हैं. मतलब हमें लाइक अगर कोई भी कंपटीशन जीतते तो लाइक हमें हमेशा वो चीज़ याद रहता है. हाँ लेकिन फॉर श्योर. अभी वो मुझे मैटर अभी क्योंकि मेरा जो फेज है लाइफ में मुझे उतना मैटर नहीं करता विनिंग लूजिंग विनिंग अ इवेंट और सम इवेंट्स और मेनी इवेंट्स. मुझे अभी वो मेरा फेज है लाइफ में कि मुझे समझ गया कि मैटर नहीं करता इतना. बट व्हाट डू यू डू एट दोज इवेंट्स मैटर्स अ लॉट. एक ट्रांजिशन आ जाता है हर एक आर्टिस्ट लाइफ में. वैसा एंड द रीजन इज दैट हमने वो फेज कवर किया. अभी हम एक नए फेज के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर नए फेज में है. ओके सो जैसे आपने आपका लाइक वन ऑफ दी वो ना हाईलाइटेड मोमेंट्स आपके लाइफ का एज एन आर्टिस्ट. सो वैसे ही खराब मोमेंट्स क्या होते हैं आपके लाइफ के एज एन आर्टिस्ट जहाँ पे आप खराब मोमेंट ऑब्वियसली सबको पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो ही रहेंगे जब where some artists they feel lost about where they are going in their art form as well as in their life. तो मेरे लिए भी ख़राब मोमेंट फॉर माई art is when I came to know कि अभी ये सब जीत रहा हूँ कर रहा हूँ ये सब कुछ ठीक है पर what really how I want to dance I was really confused. Like people thought कि ये बहुत सही है बहुत जीत लिया सब कुछ है बट बैक ऑफ द माइंड मेरा ऐसा था कि मुझे यही करना है क्या मतलब जीतना है और बैटल्स के लिए प्रैक्टिस करना है या बैटल्स जीतना है. सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज अबाउट माई स्टाइल के बट पीपल थॉट कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ सही जा रहा हूँ सब कुछ है मैं जीत रहा हूँ इतने सारे स्टाइल्स कर रहा हूँ हिप हॉप हाउस लॉकिंग पॉपिंग एंड ऑल दिस स्टाइल्स. मेरा हाईलाइट ये भी था कि ऑब्वियसली आई वॉज विनिंग लॉट ऑफ like multiple categories at one event itself. That's so nice. So I was like okay it was good for people but then later on I came to know कि अब मेरे को भी ऐसे ही करना है क्या यही. I was struggling with my own style. Like I had fun with different styles and still having fun with it when I do it but those some periods I felt like okay I really need to do something which is for me वैसा. so that and obviously life में तो obviously how can I make a living out of it. तो वो सारे moments है which I struggle back in the days but now I'm okay. सब सही है वैसा. so लेकिन वो एक मोमेंट जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे ये चीज़ गिव अप करना पड़ सकता है या फिर करना पड़ेगा. ठीक है सो ऐसा कुछ मोमेंट आया आपके लाइफ में एज एन आर्टिस्ट. गिव अप मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं डांस कभी छोड़ पाऊंगा भी क्या. अगर मैं दिमाग से भी अगर मैंने सोचा तो मेरे अंदर एक डांसर अभी पैदा हो चुका है उसको कोई मार नहीं सकता ना मैं खुद भी नहीं मार सकता अब ऐसा सीन है. सो लाइक वो मोमेंट कभी आया नहीं आप बोल रहे हो ऐसा गिव अप करने का. हाँ मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा वो कभी. अगर ऐसे मोमेंट्स आए ऑब्वियसली वेयर सिचुएशंस were really tough for me even to dance even a shake a leg within a week is ऐसा बहुत बड़ी बात होती थी. ऐसे सिचुएशंस भी आए बट मैंने बोला एक बार पैदा हो गया अंदर फिर इट्स आई कैन नॉट क्विट इट. आई होप दिस स्टेज फॉरएवर. बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट बिकॉज यू आर अवेयर लाइक कैसा एक आर्टिस्ट लाइफ स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पे लाइक बहुत रेयरली आर्ट्स या फिर इवन स्पोर्ट्स को तो इतना मिलता है लेकिन आर्ट्स जैसे चीज़ के लिए इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है. ओके एंड दैट्स द रीजन लाइक मेनी पेरेंट्स आल्सो डोंट एनकरेज देम टू लाइक गेट इनटू दिस थिंग. लाइक वो एक चीज़ है ऑब्वियसली एक चेंजेस हमें देखने मिल रहा है बट दैट इज अ स्लो वेरी स्लो चेंज. हाँ ठीक है बट अगर आप फिर भी अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाओगे लाइक जो एक बच्चा जिसको अगर आर्ट परस्यू करना है स्टिल वहाँ पे उसको चीज़ करने के लिए मना किया जाता है एंड ही इज आस्क्ड टू
focus on becoming a doctor or an IAS officer or maybe an engineer or a lawyer. Okay, but वो जैसे कि मैंने कहा कि सो वो सिनेरियो अभी तक फिलहाल है नहीं, तो एक डर रहता है कि मुझे क्या ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है, एंड बहुत लोग उसको उस नज़र से भी देखते भी नहीं है। सो दैट्स द रीज़न मैंने आपको वो सवाल पूछा कि क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया कि मे बी शायद मुझे ये छोड़ के वापस आई हैव टू गेट बैक टू फार्मेसी और समथिंग। हाँ ऑफ कोर्स लाइक एक ये जो आपने बोला सोसाइटी एंड वैसा एनवायरनमेंट है इंडिया में, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर एन आर्टिस्ट टू सर्वाइव, वो तो है ही, बट वही मुझे लग रहा है कि यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम एवरी डे। एग्जैक्टली। अगर पेरेंट्स नहीं तो दोस्त नहीं तो सोसाइटी नहीं तो कंट्री नहीं तो दुनिया नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कला, तुम कलाकार हो और तुम कला के साथ मतलब मोहब्बत है तो फिर चलते रहो चलते रहो, वैसा चलते रहना चाहिए वही। दैट्स ग्रेट, मतलब एक यू शुड नेवर गिव अप, आपको परसिस्ट करते रहना है उस चीज़ को लेके। हाँ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। हाँ गिव अप का वही वही है मुझे लग रहा है कि थॉट ही निकाल दो, ये वर्ड ही डिक्शनरी से निकाल दो, गिव अप करके कोई वर्ड भी है यू हैव टू कीप डूइंग इन हाँ। व्हाटएवर यू आर गुड एट। हाँ। वो एक चीज़ है, खराब मोमेंट्स आएंगे, अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, यू नेवर नो, यस बट एट द सेम टाइम यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स आर टेम्पररी। हाँ हाँ इट्स जस्ट कि आप एक ब्लिसफुल स्टेट में हो वो चीज़ करते हुए, फॉर श्योर नॉन अटैच्ड। हाँ बराबर ऑब्वियसली, और इतने सारे लोग हैं जो कर रहे हैं ऑलरेडी, so many struggle inspiring stories are there, biopics are there, and so many people have shared their journeys, interviews. It may help, मुझे ऐसा लगता है। सो जैसे अभी हमने कहा था कि वेयर वी डिस्कस अबाउट द सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है, हाँ सो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पेशली डांस, क्या ये स्कूल्स में स्कूल करिकुलम में होना चाहिए, सो दैट मेनी स्टूडेंट्स, मेनी पीपल जो इस चीज़ को एक्चुअल में फॉलो करना चाहते हैं, उनका पैशन फॉलो करना चाहते हैं, दे कैन ओवर द टाइम पीरियड थिंक ऑफ टेकिंग दिस एज अ करियर। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि होना चाहिए हर एक स्कूल्स में। दो स्कूल्स में अभी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस है, लेकिन हाँ है, बट इट इज नो बोलते ना एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डांस को, स्पेशली डांस को वैसे, और मे बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट गवर्नमेंट ने इनके नए करिकुलम में कहा है जस्ट इंट्रोड्यूस, फॉर द सेक ऑफ दैट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट मे बी शायद उस नज़र से इंट्रोड्यूस नहीं किया है जहाँ पे एकेडमिक्स के उतना वेटेज तक है। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स, हम लोग लेटर ऑन इन आवर स्टेज वी हैव दिस थिंग कि हम लोग को चूज़ करना है, राइट। मुझे लगता है आर्ट्स इंसान क्यों चूज़ ही करेगा जब उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया आर्ट्स क्या है आर्ट क्या है, क्योंकि हम लोगों ने साइंस एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों ने थोड़ा सा कॉमर्स, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे कैसे कॉमर्स, आई डोंट थिंक सो इवन कॉमर्स हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, राइट। नहीं, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ, पर साइंस मैंने एक्सपीरियंस किया है फॉर श्योर। और आर्ट्स के इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आर्ट्स को समझा भी है। जब मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल में मैं नाच रहा था, एंड ओके लाइक एज यू सेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ही लिया गया है ऑब्वियसली, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करिकुलम में आना चाहिए और एक्स्ट्रा को साइड में रखना चाहिए, तभी जाके हम लोग समझेंगे कि हाँ हम लोग को आर्ट्स भी आगे जाके परस्यू करना है। अगर हम लोग को उसका एक्सपीरियंस हो अर्ली स्टेज में कि इसको ये बोल रहे हैं और आर्ट सच में है क्या, और क्या क्या कैसे कैसे आर्ट फॉर्म्स है, ताकि हम लोग को पता चले कि आर्ट फॉर्म्स भी इतने सारे हैं कि नाउ हैव ऑप्शन कि अब मैं कैसे कौन सा क्या किधर से क्या पढूँ, किधर से क्या कौन सा कोर्स करूँ। तो थोड़ा नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है थोड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि छोटे एज से ही होना चाहिए, छोटे एज से होना चाहिए। हाँ हाँ, बिकॉज आई गेस जितना कम एज से अगर उस चीज़ के हम लोग देख पाएंगे, सो उतना टाइम भी मिलेगा उनको उस चीज़ को नर्चर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए।
एंड इट शुडंट बी लाइक हमें स्कूल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज हो रहा है कि मुझे ये चीज़ करना ही नहीं था, मुझे तो एक्चुअली ये चीज़ करना था. वही एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि पहले होना चाहिए मुझे, तभी जाके हम लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ करनी है, ताकि क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे को अपने इमेजिनेशन फैंटेसी या फिर आजू बाजू के लोग जो बोल रहे हो उसके हिसाब से मुझे अपना करियर चूज़ करना पड़ेगा. ओके. सो जैसे भी आपने लाइक हमें एक और चीज़ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द बैटल सीन. लाइक अभी आप जैसे आप भी ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया टू आइदर एजुकेट थ्रू योर वर्कशॉप्स और थ्रू और टू लाइक जज इवेंट्स सो ऐसा आपने इंडियन लाइक कम्युनिटी में इंडियन बैटल सीन्स में ऐसा क्या आपके हिसाब से क्या ऐसा फैसिनेटिंग थिंग आपने ऑब्जर्व किया है एंड आपका करंट पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स दिस बैटल सीन and how are you seeing this thing to evolve in the next few years? Those are big 3 questions I feel. Yeah. The first question is like what is the fascinating thing? What fascinates me about Indian battle scene, especially मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट सारे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है. लाइक दे रियली लव into they really love this part of like this side of scene, battling, ciphering, exchanging knowledge, meeting new people. तो मुझे सेम फॉर मी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि मैं कोई दूसरे सिटी में जा रहा हूँ और मैं किसी को जानता नहीं हूँ, बट देन आई हैव नाउ न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल who I can always like call up or I can meet them and share about something about dance. और तो वही लाइक ऐसा एक ब्रदर सिस्टर्स वाला गेम हो जाता है. हम लोग सब जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं लाइक वी ट्राई टू नो कि क्या चल रहा है, मतलब उनके सिटी में क्या चल रहा है, मेरी सिटी में क्या चल रहा है, हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है उसका. तो ऐसे बहुत सही एक्सचेंज मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है मुझे कि सब जितने भी डांसर्स है आर्टिस्ट है मुझे ट्राई टू एक्सचेंज. तो ये एक बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर भी करता है इन अ वे कि टू नाउ ऑल्सो बैटल कि ओके लेट्स शो देम, लेट्स एक्सचेंज देम, लेट्स लाइक टॉक इट आउट और लेट्स कनेक्ट थ्रू डांस. So it is something, it's an opportunity also कि हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से थ्रू डांसिंग ओनली. हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे का डांस देखा है, नाउ द लेटर ऑन वी आर फ्रेंड्स और मे बी वी बैटल ईच अदर, बहुत हीटेड बैटल हुआ और द नेक्स्ट मोमेंट वी आर फ्रेंड्स, दोनों साथ में गप्पे मार रहे हैं और खाना खाने जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं या फिर कुछ भी रैंडमली पार्टी कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लाइक मतलब एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. हाँ मतलब इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, पार्टी एटमॉस्फेयर लगता है मुझे. ऐसा लगता है कि हाँ भाई मज़ा आने वाला है, ऐसा कुछ कुछ सही होने वाला है वैसा. इट्स एक्साइटिंग ऑलवेज, सरप्राइज भी है और बहुत ज़्यादा नए नए लेसन्स भी है. तो समथिंग अमेजिंग मुझे ऐसा लगता है. So अभी लाइक अभी आपका करंट व्यू क्या है एंड कैसे आप इसको और आगे इवॉल्व होते देखने वाले मतलब देखना चाहते हो लाइक या फिर how are you going to see it evolve in the next few years? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि लाइक देयर अभी जो मैं इंडियन सीन के हिसाब से देख रहा हूँ तो सही है. लाइक सो मैनी पीपल दे रिलाई ऑन लॉट ऑफ लाइक लेसन्स फ्रॉम दे हैव फ्रॉम बैटल्स. इंस्टेड दे शुड रियली डिग मोर, research more, and also like share more apart from battle. So मुझे लगता है they should learn more. Not from me or anybody, but just learn, keep learning wherever you go. Just one part, I feel battle is just the one thing we have in which we represent. आई फील कि हम लोग को सबको हर एक मीडियम्स, हर एक प्लेटफॉर्म्स में हम लोग को और ज़्यादा वी शुड वर्क
हम लोगों को वो सारी स्किल्स और सीखनी चाहिए एंड वी शुड रिप्रेजेंट देयर ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि वी people who battle, they should even have this mindset कि खाली बैटल नहीं करना है मुझे, जो मुझे दिख रहा है परफॉर्म करना है, थिएटर करना है, फिजिकल थिएटर लाइक यूरोप में जैसा हो रहा है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो कर रहे हैं. आई फील वी शुड ट्राई आउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. मुझे ऐसा लगता है कि देन आई थिंक वी एज अ आर्टिस्ट विल इवॉल्व. अगर हम लोग हमारा आर्ट ही इवॉल्व हो रहा है तो इवन जो बैटल्स में भी चल रहा है फिलहाल, इट विल चेंज कि उधर भी ऐसा कैटेगरीज, न्यू कैटेगरीज आएगी, मे बी न्यू रूल्स आएंगे, नए नए चीज़ें आएगी. आई फील न्यू फॉर्मेट्स आएंगे बैटल्स में भी. तो मुझे लगता है आगे वैसा थोड़ा आर्टिस्टिक इवोल्यूशन मुझे लगता है कि आना चाहिए इन बैटल सीन ऑल्सो. Okay, so that is your take on the current scene. Take right now. More I have to say, but right now, yeah, this much. And it's, I guess, like it is evolving, at a really good pace as well, हाँ, like अभी obviously like इधर से लोग travel कर रहे हैं. पहले तो obviously we were traveling from cities to cities. अभी सब बाहर जा रहे हैं, countries travel yeah, कर रहे हैं. मैं तनुज को follow कर रहा हूँ. हाँ, I'm seeing they're him killing. travel to different countries, and it They're feels also good. winning. They're also winning. Yeah, They're that's killing. one of the most important thing. Representing, winning, and then really like put like impression छोड़ के आ रहे हैं भाई हम लोग इंडिया से, हम लोग Exactly. ये चीज कर रहे हैं. मतलब हम लोग एक अपना एक बेंचमार्क सेट करके आ रहे हैं, like we from India are also, मतलब हम लोग भी है उतने लेवल के हैं. And I'm really liking the scenario. लोग जो ये आर्टिस्ट सेट करके आ रहे हैं, representing the culture, and more importantly you are getting that opportunity to represent the country. Yes. वो एक अलग फीलिंग होता है. So मतलब मैं भी एंजॉय कर रहा था करंट सीन, एंड आई होप जो आपने कहा, लाइक उस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती रहे एंड वो एक चेंज भी आते रहे. एंड आई होप अगर पॉजिटिव वे में मैं नहीं चाहता तो भी आएगा ही. अगर मैं चाहता नहीं हूँ, मैं अगर मेरे चाहने से कुछ नहीं वाला. चेंज एंड इवोल्यूशन is constant, as you say, like but in a very positive way, obviously. where people learn, where people exchange, वो सब चीज़ चलते रह रहे हैं. So moving to the last part of our podcast, like what would be the piece of advice you would like to give to the people who are looking to pursue this form, or maybe dance as a career, okay, and what are the necessary things they should focus on, like if they are looking to pursue this as a career? As a career, dance as a career, I feel कि whatever up like जितना भी, I think research, they have to research more how they can be good at some people are good at teaching, so they should learn how to educate themselves first and then they can educate. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि इंग्लिश भी थोड़ा उनको डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो वहाँ एजुकेशन मैटर करता है. लाइक बिकॉज if you have students from outside India, Germany or maybe America or from anywhere, like you should know how to connect with them in the respective language. मुझे लग रहा है कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड, तो मुझे लग रहा है कि वैसे ही. तो they have to also like look for different fields कि किधर क्या क्या हो रहा है, what they are really good at it, and they have to learn accordingly those skills. I think then they will have a way कि मैं इसमें ऐसा करियर बना सकता हूँ, इसमें ऐसा करियर बना सकता हूँ, इसमें ऐसा. So आपके हिसाब से like आपको आप जो कर रहे हो आपके डांस में तो अच्छे होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको और भी स्किल्स आने चाहिए. दैट इज व्हाट यू मीन टू से, राइट? For sure, communication skills, marketing skills, then even like you need to be educated enough to understand different fields as well, and how the market works or how the current scenario is. Then personality, how you keep your, if you go and walk out ऐसे ही सो के उठ के, या फिर casually अगर कोई बड़े
बड़े बड़े मीटिंग्स में जा रहे हो तो इट विल नॉट वर्क. तो पर्सनालिटी हाउ यू कीप in check. Well, obviously, like the person who is meeting, he might not be uh, a dancer or उनका कोई डांस है आता पता भी नहीं रहेगा. But still, if somebody wants to invest in what you do or maybe something like that, obviously you need to have different skills. तो वैसे like because dance is our superpower. But now how really we can convert this into a lifetime thing is up to us now. Yeah, so you have to learn other skill set as well, which will complement your superpower. हाँ, obviously yes. Like उसको और आगे बढ़ाने को enhance करने की कोशिश करो. And you know exactly हम यही चीज़ यहाँ पे आइडल्स में भी करने की कोशिश कर रहे हैं through our diploma courses, you know. And I guess we are the only institute in India to do that. Because जैसा अभी जो आपने mention किया about Obviously. personality development, communication skills, marketing skills, Even there are we a lot have many topics. nutrition, then Exactly, different career counseling session as well. injury prevention, yes. Yeah, so हमने हमारा courses भी design किया गया है like to make the artist skillful because आज के time पे it's really important that you learn how to survive and live with your passion, you know, especially your art form. And सिर्फ dance से fulfill नहीं कर सकते, you need to learn some extra skills as well. एंड वही चीज़ हम यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं. I think yeah, हाँ, जो वही मैं बोल रहा था जो स्कूल में लैक कर रहा है, I think the courses like this fulfills it. Exactly. वही. So and we are doing it with the purpose and the purpose is to मैं बहुत rarely इसके बारे में बोलता हूँ but like just मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा. The purpose is to make dance a valuable profession in our country. Okay. So वो एक purpose है जो हमें like encourage करता है to keep going, and keep doing our duty. And I know people will realize हम यहाँ पे चीज़ क्या provide कर रहे हैं. And I'm really liking the response as well. Definitely जो students यहाँ पे आके कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं, so एक पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होके जाते हैं हम लोग. And they speak about it, they get in touch with us कि like कैसे ये कोर्स के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए उनकी लाइफ में. And they are like really aligned with their vision कि करना क्या है exactly. So जब भी उस तरह का फीडबैक मिलता है then somewhere हमें एक तरह का assurance देता है कि like we are on a right track and we should keep on doing with it. And जैसे आपने mention किया like it's really important that एक artist को आज के टाइम पे बहुत skillful होना चाहिए. I guess जो भी ये podcast सुनेंगे they will also realize the importance of it, and they will also focus not only on their dance skills but also on those different aspects as well, which will help their dance itself. Exactly. उनको lifetime वो सारी skills help करेगी to keep going with the passion, with the love they have for dance. वैसा. So it was really nice talking to Mir. मुझे बहुत अच्छा लगा. बस एक last मैं miss out किया कि why Mix 62, like ये important point हमने discuss करना भूल ही गए. So Mihir, आपका Mihir Karelia is your I want to keep it secret, otherwise now people will, because it's a very funny, like कैसा ये नाम आया, बहुत funny instance पे आया हुआ. अब मुझे अब पता आपने डिस्कस किया बट स्टिल मुझे चाहता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स है उनको इसके बारे में एटलीस्ट एक आइडिया मिले like why Mix 62. So there is one of the first generation rapper of India, like for me is a legendary rapper for sure. उनका नाम एस है. लाइक सो हम लोग पहले जाम सेशंस करते थे एंड लाइक आई हैड अ बीनी बैक इन द डेज. मेरा बाल बड़ा ही था जब मेरे स्टार्टिंग के फेज में भी मेरा बाल बड़ा था. एंड देन मुझे ऐसा लगता था वो बीनी मेरा लकी चार्म है, पर उसके थोड़े क्या बोलते हैं उसको बैड साइड्स भी थे. लाइक इट यूज्ड टू स्मेल ऑब्वियसली इफ यू कीप वेयरिंग इट. तो ऐसा था कि like Mick is my full name, Mihir Karelia. MI stands for Mihir, K for Karelia. But what's smelly, because I was a like funk freak. Like I used to like love. I still love, but I love like I used to love a lot back in the days, popping and locking, these two styles. So like for us it is an what do you call it, is something क्या बोलते हो उसको,
So funk has a certain meaning of हाँ stinkiness as हाँ well. स्टिंकीनेस एज वेल कि हम लोग के लिए ये बहुत सही है, किसी ने हम लोग को बोला तो हाँ मतलब कुछ अच्छा बोला हम लोग के लिए, मतलब फॉर मी even like smelly and all these qualities pointing out towards the passion you have, like hard work you do for your art or for your dance. So I took it as a very, what do you call, सही बोला, मतलब मुझे सही बोला, क्या बोलते हो उसको, किस लाइक ही यूज्ड टू कॉल मी 62 बिकॉज उसका जो हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं 62 सो 62 स्मेली, या तो अब 62 अगर मेरा नाम रखता तो सब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ समझते, तो ही स्टार्टेड कॉलिंग मी 62, तो किसी को समझे ना, तो मैंने खाली ऐड कर दिया मिक 62, नथिंग. So that's how you got your stage name of Yeah, Mix 62. like it was, it's a what do you call पूरा मतलब filling the gap जैसा थोड़ा वैसा है. then obviously the stage name sounds cool, हाँ. but वो कहानी सुन के मतलब जितना funny होगा इतना हम लोग expect नहीं कभी, लेकिन but it's really nice, you know, like एक काफी cool stage name है, वो आपका identity बन गया है, and moreover I feel it has also become a brand as well. ठीक है, वो एक चीज मैंने observe किया. No, Mix 62 now, obviously मुझे नहीं लगता कि लोग आपको अभी नाम से जानते हैं. हाँ, लोग पहचानते इधर भी हैं refer obviously. करके they refer with your brand name like Mix 62. So that's the thing you have built it. And मुझे शायद पॉडकास्ट में उनको असली मीनिंग भी मालूम पड़ेगा. मत डालो ये. So thank you Mihir, thank you so much for giving your time. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के. जो हम इतने डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाए, बट आई रियली एंजॉयड जो भी आपने लाइक आपकी जर्नी से कुछ कुछ जो मोमेंट्स टच किए, हाइलाइट्स, आई रियली लाइक्ड इट, एंड इट वाज रियली नाइस टू नो यू एज एन आर्टिस्ट, आपका थॉट जानने के लिए, एंड आई जस्ट वांट टू लाइक ऑब्वियसली बेस्ट विशेस नहीं बोलूँगा, वो तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू करते रहे. आप जो कर रहे हो लाइक इट्स रियली इंस्पायरिंग, एंड ये एक आर्ट कम्युनिटी के लिए उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड आई होप और लोग एनकरेज होए, एंड दे ऑल्सो फील लाइक हाँ हमें भी ये चीज़ करना चाहिए, एंड बस ये चीज़ बोलना चाहूँगा, एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप जो भी ये रखा आपके लिए ऑब्वियसली अच्छा ही रखा रहेगा आगे भी, एंड ऐसे आइडल्स के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे आपके साथ. सेम यार. मैं तो इधर ही सिखाने वाला हूँ. So thank you so much Mihir, thank you so much, it was really nice talking to you. Thank you so much.